Good morning to all. Today in this lecture, we are going to understand about the organic reactions, especially the addition reaction. Now let's start. All the organic molecules, when undergo a reaction with the suitable nucleophilic or electrophilic reagents in an organic reaction, this process of generation of one or more intermediate species, which subsequently undergo further transformation to provide the end product. The process of organic reaction is basically the formation and breaking of breaking and formation of covalent bonds, especially the process of breaking and forming covalent bonds often taken place in a series of distinct stage with prior to the conversion into a final product. Means in a overall organic reaction is kind of reaction in which the formation and breaking and formation of the covalent bond takes place, especially the pi and sigma bond. Okay. Now, what are the chemical reactions, and if this kind of chemical reaction either can take place through either a single step or a sequence of multiple steps. If the reaction in a single step in which the formation and the breaking takes place simultaneously, then these kind of reactions are termed as concerted reactions. Concerted reactions involve simultaneously breaking or forming of many bonds, and that is which results in the direct conversion of starting material into a product. A step response is characterized by involved in multiple sequential steps. In this particular illustration, we can see here any reactant when undergo reaction with a reagent can be nucleophilic reagent as well as the electrophilic reagent, can react with each other and in presence of any solvent, in the presence of any light, and as well as the temperature, any catalyst, any acid base, or that there can be any pressure, there is a formation of intermediate as well as a transition state. The energy between the intermediate and transition state are slightly uh, different, so both can be seen, but intermediate having the slightly higher stability than that of the transition state, so intermediate can be isolated. Now when the intermediate undergo the final reaction, the product formation takes place. Intermediate plays an important role for the reaction step, for the stability of the product, and about the intermediates, if we talk, the intermediates are of many types. That can be carbocation, that can be an carbanion, a free radical, nitrine, carbene, as well as benzene. There are number of 3 and 4 5 types of intermediates are there, and on the basis of the stability of the intermediate, we can see so the product's stability. Okay, now what are the kinds of organic reactions? We already know there are 5 kinds of organic reaction. The first one is addition reaction. Addition means the combination of two molecules. When two molecules combine together, the formation of product is there. Then it will be termed as addition reaction. The second one is elimination reaction. Means one molecule splits into the two. And third one is substitution. The exchange of components between two molecules. The most important thing to understand here, the exchange is there between two molecules. The fourth one is rearrangement reactions. Means the alteration of atomic connectivity within a molecule is the same, only because only the atomic connectivity has changed, and this is the alteration of atomic connectivity. Then that is known as rearrangement reaction. And the fourth and the fifth and the last one is the Diels-Alder the cycloaddition. Here dine or dinophile combines together and form a cyclic product, and this is also known as cycloaddition, Diels-Alder cycloaddition reaction. We have 5 types of organic reactions. Now we will focus our this video uh, into only the addition reaction. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं addition reactions के बारे में.
एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंपली एक रिएक्टेंट है वो आपस में दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, दूसरे रीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, तो इसमें सिंपली दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक पाई बॉन्ड का सिस्टम है, वो पाई बॉन्ड टूट के, जिसको हम यहाँ पे सैचुरेटेड बोलते हैं, जिसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, तो वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है जिसमें पाई बॉन्ड होता है, वो क्या करेगा, वो टूटेगा, उसकी जगह पे दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो दिस रिएक्शन इज जस्ट एडिशन रिएक्शन वेयर टू different entities are added. Why these are added? Because the pi bond is there, the cleavage of the pi bond take place, and that conversion of pi bond into two single bonds takes place. And the most important thing, when the replacement of pi bond takes place by the two different sigma bonds, that results in the negative change in enthalpy. एंथैल्पी में नकारात्मक बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा इसी का एग्जांपल हम ये देखते हैं, पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे टूटेगा, is broken, and the addition of bromine will takes place, and the formation of two sigma bonds will be there. The bromine is added. Here we have the cycloalkene. There is a pi bond. The pi bond will get broken down, and the hydrolysis in the presence of acid will take place. The acidic hydrolysis में क्या होगा, पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, एक जगह OH जुड़ जाएगा और एक जगह H जुड़ जाएगा, और यहाँ पे साइक्लिक अल्कोहल जो है वो बनेगा, जिसमें कि H2 ऐड हो गया। तो सिंपल रिएक्शंस हैं, जब रिएक्शन एडिशन होगी तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे एग्जांपल लें हम, तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं एक एल्कीन है, और उस एल्कीन में हम 1,3 इसमें है कि 2 ब्यूटाडीन है, तो ब्यूटाडीन HBr का सिलेक्शन कर रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HBr कैसे जुड़ता है, पाई जो बॉन्ड है वो H पॉजिटिव को ले लेगा अपने साथ में, और Br नेगेटिव यहाँ एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और कार्बन में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम इसको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बोलेंगे, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फर्दर स्टेप में Br के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि फास्ट स्टेप होगी, और फास्ट स्टेप के बाद हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो स्टेप 1 में क्या होना है कि द बॉन्ड फॉर्मेशन means the pi bond will get undergo cleaved, and the formation of new sigma bond takes place, and the carbocation get generated। तो कार्बोकेटाइन जो जनरेट हो रहा है वो स्लो स्टेप प्रोसेस है, और हम जानते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है। रेट को डिटरमाइन का मतलब क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर केस इफ विल से व्हाट इज द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। here we have the two reactants, let us suppose this is alkene and this is another HBr. So HBr and alkene, that's why the order of this kind of reaction will be termed as 2, but most of the cases this kind of reaction will depends upon the steps, and the step is here मल्टीपल स्टेप में दो जो स्लो स्टेप होता है वही डिटरमाइन करता है। तो रेट इसका ऑर्डर इसके आधार पे 2 होना चाहिए, बट इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो ये स्यूडो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाती है, जिसमें कि कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें द बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज़ अबाउट टू फॉर्म और अबाउट टू क्लीव, दोनों चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज यहाँ इसके एडजेसेंट कार्बन ने हाइड्रोजन लेने की कोशिश कर रहा है, वो हाइड्रोजन लेने की कोशिश कर रहा है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। तो बगल वाले जस्ट एडजेसेंट कार्बन में डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इज देयर, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इज देयर, एंड Br when it will leave from this group, or this is about to leave, this is about to attach, and the bond double here is about to cleave. So we have the formation of intermediate, and the first step will say कि भाई एडिशन रिएक्शन में जब भी ऐसा कुछ होगा तो एल्कीन जो है वो प्रोटॉन को लेगा, प्रोटोनेशन होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो लीविंग ग्रुप है वो दूसरे स्टेप में जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, और दूसरे स्टेप में जाके इसका एक कनेक्शन होगा, एंड द केमिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड आयन
with the positive carbon atom, that is carbocation, the formation of bond between these two atoms will takes place, and finally हेलो एल्केन्स हेलो ब्रोमाइड जो है वो यहाँ पे बन गया, और दिस इज ट्रांजिशन अगेन ट्रांजिशन स्टेट इन विच दिस बॉन्ड इज अबाउट टू फॉर्म विद द कार्बन एटम। सो एक ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा। इस पूरी कंडीशन को, पूरी रिएक्शन को हम एनर्जी डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्टेट था, रिएक्टेंट था, और दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे थे, और रिएक्शन करने पर पहले ट्रांजिशन स्टेट बना पहले स्टेप में। ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें क्या मिल गया, एक इंटरमीडिएट मिल गया। दिस स्टेप इज एन इंटरमीडिएट स्टेप, आई से इंडिकेट करते हैं इसको। ये है ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। मतलब पहले स्टेप में जो ट्रांजिशन स्टेट बना उसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा थी, इसका मतलब है इसका जो लाइफ स्पान है वो कम होगा, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सो ट्रांजिशन स्टेट इज एन इमेजिनरी स्टेट where we can see the bonds are about to form or about to cleave, तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया जा सकता है, और हम देखें इस इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी इसकी केमिकल रिएक्शन की डिपेंडेंसी रहती है। और जैसे ही ये दूसरे ट्रांजिशन स्टेट पे आता है, ट्रांजिशन स्टेट पे आने पर हम देख सकते हैं कि इजीली ये प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस व्हेन it undergoes through the one transition state, two transition state, and an intermediate. So energy diagram is also very important to explain any kind of chemical reaction. Here we have this interesting energy diagram जो एक इंटरमीडिएट और दो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में देखने को मिल रहा है। दूसरा हमारे पास है एडिशन रिएक्शन में ही एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में बहुत आसानी से एक फ्री रेडिकल जो इनिशिएट करता है रिएक्शन को, उसके साथ वो रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बना देता है। और इनिशियली रेडिकल होगा, रेडिकल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगा, और एक प्रोडक्ट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो निकाल के दे देगा, जिसको हम प्रोडक्ट रेडिकल बोलते हैं। Let us suppose we have the methane when reacts with chlorine, there is a formation chloromethane. So we can say that the chlorine will initially cleaved into the free radical, and we will show this free radical by the indicating this by half arrow, or half arrow means the movement of transition, or the movement of the electron, only one electron is there, half कर दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, हाफ एरो दिखाया हमने। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर होता है या एचन्यू के प्रेजेंस में होता है, तो जितने भी रिएक्शंस होती हैं वो सब फ्री रेडिकल के आधार पर ही देखने को मिलती हैं, और हमें क्लोरोमीथेन मिलेगा। क्लोरोमीथेन फर्दर जो है कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। पहले हमें फ्री रेडिकल मिला, उस फ्री रेडिकल की रिएक्शन हुई मीथेन के फ्री रेडिकल के साथ, और फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके कोलाइड हुए, और फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। इसको 3 स्टेप से देखा जाता है। इस इनिशिएशन होता है, पहले स्टेप में इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनता है। दूसरा होता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो आपस में इनिशिएशन के टर्म्स में प्रोपगेट होकर फाइनल प्रोडक्ट में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट तो टर्मिनेशन में आता है, लेकिन प्रोपगेशन क्या करता है, उसको प्रोपगेट करता है और फ्री रेडिकल को जनरेट करते रहता है। तो जब तक कि फ्री रेडिकल जितने भी हाइड्रोजन सबको हटा नहीं ले तब तक रिएक्शन करेगा, एंड फाइनली द टर्मिनेशन टेक्स प्लेस। टर्मिनेशन कैन बी occurred through two ways. The one is collision, the another one is इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, यहाँ पे सिंपल कोलिजन रिएक्शन हो रही है तो हमें इथेन प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। तो इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन, 3 सब स्टेप्स से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझा जा सकता है, जो कि अपने आप में बड़ा आसान है। तो एडिशन रिएक्शन के 2 पार्ट्स हमने समझ लिए हैं, और ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो पहला पार्ट है यहीं पे ख़त्म होता है, और बाकी अन्य पार्ट्स वाली बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है कंप्लीट हो गया। तो इसको हम, अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप इसमें कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसको जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।